Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself, Tosip sir. Student, as you know, we are on unit number 2 is matter around us is pure or not. And in this unit, we have covered the topic like colloidal solutions, suspension, solution, its components, mixture and its types, as well as what is the meaning of pure till this lecture. In today's lecture, students, we are going to discuss about physical and chemical changes. The in between topic, the filtration, how the substances are separated, that we will learn in next lecture. But before that, let us learn about the physical and chemical changes. Changes takes place in our surroundings. First is called physical change, second is called chemical change. What is the meaning of physical and chemical change? Let us know. The first change that we are going to study is a physical change. Student, physical means the characteristics of any substance that we can see through our naked eye. The characteristics like color, texture, etc. or the change in this state. Or if I precisely say what is the exact meaning of physical change, that the interconversion of state is a type of physical change. यानी कि कोई भी सब्सटेंस की अवस्था में बदलाव आता है तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है. से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ वाटर, so water naturally at a room temperature is in which state? Liquid state, as all we know. But if I will ask you that if I will put a utensil of a water, यानी कि पानी से भरी हुई एक पतीली हम फ्रीज के अंदर रखते हैं, so after 1 or 2 hours it is converted into the ice and it is the solid state of matter while the water is a liquid state. So apparently the ice cubes are very hard, perfect in shape, means the shape is fixed and the volume is also fixed. Okay, so it is called a solid state of matter. So what do you think, which kind of changes takes place? Water is having any kind of shape in a liquid state, but the ice is having a precise shape. So what you can consider it? It is a physical change. Because why it is a physical change, student? In this process, the molecules of the water are not changing their property. Means पानी तो पानी है, आप उसे लिक्विड फॉर्म में रखो या बर्फ में जमा के रखो, the main constituent of the matter is water. It is made up of water particles. Ice is made up of water particles. Now again I will give you another example. If you heat the water, आप वाटर को हीट करते हो, so what kind of change takes place after continuously heating the water? The water will converted into the gaseous state, means the water is converted into the vapor. Vapor is a gaseous state of water. यानी कि यहाँ पे से भाप बन के जो पानी की उड़ेगी ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? वाटर वेपर. तो अब पहले वाटर लिक्विड स्टेट में था, अभी वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. सो इट इज़ अ विच काइंड ऑफ चेंज? It is a physical change because the water vapor constitute the water molecules. पानी तो बदलता नहीं है ना, पानी चाहे बर्फ हो, लिक्विड हो या चाहे गैसियस स्टेट में हो, पानी तो पानी रहता है. There is no adulteration inside the water molecules. So that is why only the conversion of the state will takes place. That kind of change is called फिजिकल चेंज.
यानी कि सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो कोई सब्सटेंस, लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्ट हो, एट दैट टाइम दैट काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज. और प्रिसाइसली यहाँ पे लिखा हुआ है, in this type of change there is a no change in a chemical composition and no change in the chemical nature of substance. जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि इस प्रकार के बदलाव में मेन कंस्टिट्यूट जो होता है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केमिकल स्ट्रक्चर में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता. मीन्स इफ H2O is available in a gaseous state then it is H2O. If it is available in liquid state then it is H2O. And if it is present in a solid state in form of ice then also it is H2O. It is not H2O2. ओके, ये H2O2 नहीं हो जाता अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सब्सटेंस का केमिकल कंस्टिट्यूट जो है वो अगर एक समान रहे, चाहे उसका स्टेट कोई भी हो, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, स्टेट कोई भी हो, लेकिन अगर उसका कंस्टिट्यूट, केमिकल कंस्टिट्यूट सेम रहे तो उस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. सो इन अ फिजिकल चेंज नो चेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द केमिकल कंपोजिशन. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज है. पेड़ पहले ज़मीन के ऊपर पेड़ है तो पहले ऐसा है, ठीक है, उसको कट कर दिया, बाद में वो पेड़ ऐसा बचेगा. तो बाजू में जो पेड़ पड़ा है यहाँ पे कट के इस तरीके से, तो वो पेड़ ही है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूट में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली द शेप विल चेंज, शेप इन साइज विल चेंज. पहले पेड़ इतना बड़ा था, अब पेड़ इतना छोटा हो गया. सो ओनली द शेप ऑफ द ट्री इज चेंज्ड. दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. आफ्टर दैट सेकंड टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज. इन अ केमिकल चेंज वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन. यानी कि केमिकल चेंज जो है उसमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलके एक नया कंपोजिशन बनाता है और उसके केमिकल कंपोजिशन पूर्ण तरीके से चेंज हो गए होते हैं. यानी कि जब ये बदलाव आता है एट द एंड ऑफ द केमिकल चेंज वी गॉट न्यू सब्सटेंस. इस बदलाव के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो बिल्कुल नया होता है. जैसे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल. कैंडल को जब आप जलाते हो तो उसमें से हमें जो है वो वैक्स मिलता है और हीट एंड लाइट हमें मिलती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है उसमें से. सो आफ्टर बर्निंग अ कैंडल लॉट मैनी substances, new substances that we are getting is smoke, heat and light. ओके, दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन. जब हम आयरन को देखते हैं, यानी कि लोहे को पानी में पड़ा हुआ या तो खुले में देखते हैं, तो उसके ऊपर जो रस्टिंग हो जाता है, गुजराती में जिन्हें काट लागवो कहवाय, जंग लगना जैसे हम कहते हैं, ठीक है. तो जंग लगा हुआ लोहा जो होता है उसके ऊपर परत हो जाती है, छोटी सी फ्लेकी सब्सटेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है. तो ऊपर की परत जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है या तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है. तो वो आयरन नहीं है, लेकिन वो आयरन ऑक्साइड है. यानी कि पहले वो Fe था, Fe मतलब आयरन, ठीक है, उसका केमिकल नेम है Fe. तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, FeO. मतलब जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है ना, वो और कुछ नहीं लेकिन फेरस ऑक्साइड है. पहले वो क्या था, फेरस प्लस ऑक्सीजन. ओके, so chemical change is a type of change in which one substance undergo a change with the another substance and form a entire new substance. पूरा नया substance बनाते हैं, which is entirely different from the original composition. पहले Fe था, अब FeO हो गया. Okay, so that kind of change is called as the chemical change. Similar examples are burning of paper and wood. लकड़ी को या तो पेपर को जलाते हो तो उसमें से जो प्रोडक्ट्स मिलती है, स्मोक जनरेट होती है और जो बचा कुचा सामान पीछे बचता है, जैसे कि लकड़ी को जलाने के बाद ब्लैक कलर का जो कोल जनरेट होता है जिसे हम लकड़ी का कोयला कहते हैं, तो वो अलग सब्सटेंस है वुड से. इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल चेंज. ओके,
सो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के कितने प्रकार हैं? बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से सब्सटेंस को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक को एलिमेंट्स और दूसरे को कहा जाता है कंपाउंड्स। लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use word element in 1661। रॉबर्ट बॉयल एक ऐसा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था कि जिसने पहली बार एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, नाम याद रखना, अ फ्रेंच केमिस्ट वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ डेफिनेशन। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर पहला वैज्ञानिक था कि जिसने एलिमेंट की डेफिनेशन दी। ही डिफाइंड दैट द एलिमेंट इज अ basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance। Let us understand with the example। एलिमेंट जो है वो मैटर का बेसिक फॉर्म है, एक सामान्य स्वरूप है जिसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो अगर हाइड्रोजन के एटम्स को ब्रेक करोगे तो उसमें से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द हाइड्रोजन एटम। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यानी कि हाइड्रोजन को ब्रेक किया तो उसमें से मिलने वाले दो एटम जो होंगे वो भी क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसको डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन ही मिलता है बेसिकली, कोई और सब्सटेंस जो है वो हमें नहीं मिलता। यानी कि ये लास्ट फॉर्म ऑफ मैटर है एलिमेंट, कि जिसके आगे उसका ब्रोकन डाउन पॉसिबल नहीं है। अब एलिमेंट्स है उसके तीन प्रकार हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। चलिए आइए जानते हैं मेटल्स। 8th स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। दे आर लस्टरियस, यानी कि जो मेटल्स की सरफेस होती है वो शाइनी होती है। स्टेनलेस स्टील देख लो, आयरन देख लो, सभी की सरफेस जो है वो चमकीली होती है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना हो तो जो साइलेंसर्स होते हैं 2 व्हीलर्स के, उसको देखना, ब्लैक कलर के नहीं, जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, उसकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी। सेकंड, हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, यानी कि मेटल का जो कलर है वो जनरली ग्रे कलर के होते हैं या तो सिल्वर कलर के होते हैं। वो चाहे एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, स्टेनलेस स्टील ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ओके। या तो होते हैं गोल्डन येलो कलर के, गोल्ड और सिल्वर बोथ आर कंसिडर्ड एज मेटल। They can conduct heat and electricity। The metals is a good conductor of heat and electricity। That is why all the heating equipments are made up of the metals। They are ductile in nature। Ductile का मतलब होता है कि खींच खींच के आप उसके तार बना सकते हो। गोल्ड जो है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल इतना है कि अगर आपके पास 2 ग्राम गोल्ड है तो उसमें से आप 2 किलोमीटर के तार बना सकते हो। कितने किलोमीटर के? 2 किलोमीटर के। इतनी उसकी डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब ही यही होता है कि यू कैन स्ट्रेच एनी ऑफ द सब्सटेंस, ओके, कि किसी भी सब्सटेंस को आप खींच सकते हो, उसको खींच के तार बना सकते हो। उसके बाद है दे आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स आप उसकी थीन शीट्स बना सकते हो। जैसे आज के समय में जब हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल आती है खाने को गर्म रखने के लिए, सिल्वर फॉयल वाली मिठाइयाँ आती है, तो वो जो फॉयल होती है एकदम पतला लेयर होता है। तो सब्सटेंसेस को हैमरिंग करके उस पतली शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, और ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं मेलेबल मटीरियल। एंड दे आर सोनोरस, द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। सोनोरस का मतलब जब भी मेटल्स किसी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। एग्जाम्पल मेटल के गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड सोडियम, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। देन आफ्टर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल हैज़ अ वैरायटी ऑफ कलर। नॉन मेटल जो है वो अलग अलग कलर की वैरायटी में मिलते हैं। आप वुड ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, टेफ्लॉन मटेरियल ले लो, ठीक है। तो ये सभी है नॉन मेटल्स जो अलग अलग कलर में उपलब्ध है।
poor conductor of heat and electricity. The non-metals are very poor in conduction of the heat and electricity. यानी कि आप जब प्लास्टिक को छूते हो, इसका रीज़न भी आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने में आया होगा कि जो भी यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बने हुए होते हैं जो किचन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक के बने होते हैं, विच इज़ वन काइंड ऑफ नॉन मेटल. तो वो जब हैंडल्स को हम छूते हैं तो गर्म नहीं लगता, लेकिन जब वो यूटेंसिल को जो मेटल की बनी हुई है उसे छूते हैं तो गर्म लगता है. इट मीन्स द प्लास्टिक्स विच इज़ अ नॉन मेटल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ heat as well as electricity, and the metals are the good conductor of electricity. Non-metals are not lustrous, malleable and sonorous. यानी कि वुड को आप कोई दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक करो तो वो आवाज़ नहीं करता, जितना मेटल करता है उतना आवाज़ वुड नहीं कर सकता, कोल नहीं कर सकता. ठीक है. दे आर ऑल्सो नॉट मेलेबल. वो मेलेबल भी नहीं है. मेलेबल यानी कि उसकी हम थिन शीट्स नहीं बना सकते, वो चाहे प्लास्टिक हो, कोल हो, वुड हो, उसकी पतली शीटें एल्यूमिनियम फॉयल जितनी, सिल्वर फॉयल जितनी हम बना नहीं सकते. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट लस्टरियस, यानी कि उसकी सरफेसेस जो है वो चमकीली नहीं होती. एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. उसके बाद है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं. केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. कंबाइन होते हैं लेकिन वो मिक्सचर नहीं कहा जाता. उसे कंपाउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोई एक फिक्स अमाउंट के अंदर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि H2O. ओके. तो H2O के अंदर हाइड्रोजन के क्यों सिर्फ 2 मोलेक्यूल और ऑक्सीजन का क्यों है? क्योंकि वो एक कंपाउंड है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर जुड़े हुए हैं. ओके. ऐसे ही मीथेन है, शुगर है. सो दिस आर दी एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. यानी कि उसकी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की मात्रा कोई फिक्स है. जैसे कि H2O है तो H2 है, हाइड्रोजन के 2 मोलेक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? H2O. ओके. सो दैट्स इट स्टूडेंट. यहाँ पे आपका टॉपिक जो है आज का ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर उसके बारे में पढ़ेंगे, द वेरियस टेक्निक्स ऑफ द सेपरेशन. थैंक यू.